Yes, good morning, everyone. Welcome to the class. As two, three people were absent yesterday from class because of network issue and a health issue. No problem, no need to worry. We will recapitulate whatever we have done yesterday. Okay. Abhishek, beta, recapitulate within 2-3 minutes whatever we have done yesterday. Hanji, beta. Good morning, Abhishek. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am, beta. we have done two questions of the romantic imagination and national feeling. You have recapitulated what is romanticism, and you have given us the answer. You have marked us the answer. Should I Okay. tell the question answers? No, not at all. No, they will do. Otherwise, they will tell me and I will tell them the perfect answers. Means now you have told us Okay. that yesterday we have done two questions. Romanticism क्या होता है अभिषेक? Ma'am, romanticism means like bringing national feeling with the help of folk culture, songs, etc. Arts, poetry also. अच्छा, अभिषेक मेरी बात सुन. Yes, ma'am. वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है? Ma'am, vernacular language is a local language spoken in an area. ठीक है. It means both the questions are clear to you. दोनों क्वेश्चन Yes, कॉपी पे ma'am. लिखने and those people who were absent yesterday. मेधा तू भी नहीं थी ना कल क्लास में? हाँ तो बेटा यू प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन ना. 2 क्वेश्चंस कॉपी पे लिखने हैं ये दोनों क्वेश्चन. चलो नाउ वी आर गोइंग फर्दर फॉर द टॉपिक. मेरे पास है बेटा पेज नंबर 15, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. Yesterday actually we were about to start this topic, but you remind me that ma'am 2 questions left, so we left this topic, current topic, and we started doing those 2 questions which were left earlier. हाँ जी बेटा, कैमराज ऑन. बेटा कैमराज ऑन, नहीं तो ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ विद ऑफ कैमराज. हाँ वंश कैमरा ऑन ही रखना. अनुरीत, अनीश, हृदयजोत. हृदयजोत हम तो आते ही कभी कभी है क्लास में. कैमरा मस्ट ऑन. यस. थोड़ा सा पटका पीछे करो हृदयजोत. गुड बॉय. यस, और सीधे होके बैठना. Anurit, now you left only with off camera. Yes, now we are going to start. बस 15-20 मिनट मैंने पढ़ाना होता है. ध्यान से सुन लेना. So the topic must be clear to you. जहां आपको दिक्कत आएगी, you can interrupt me in between, you can raise your hands, I will unmute you और मुझे बता देना डाउट क्या है. ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करें. काफी दिन हो गए हमारा 10F में ये लेसन है ना. हाँ जी. टुडे द टॉपिक इज हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट. अच्छा, yesterday you were saying कि मैम इसकी हेडिंग से ही लग रहा है कि दिस विल नॉट बी अ हैप्पी टॉपिक, क्योंकि हंगर ही हंगर सब जगह, हार्डशिप सब जगह, रिवोल्ट सब जगह. पूरे यूरोप के लोग आपस में ही लड़ी जा रहे हैं. बताओ, किसी का तो वो क्या ही भला करेंगे, है ना. अब यही देख रहे हो ना, यूरोप में सारे वो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आपस में ही सब लड़ी जा रहे हैं. और उधर से फिर फायदा उठा लिया रशिया ने, अमेरिका ने, जो पावरफुल कंट्रीज थे, है ना. चलो, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. आई होप हेडिंग इज क्लियर टू यू. हम क्या पढ़ने वाले हैं. हाँ जी. शेल वी स्टार्ट बेटा. अच्छा, रेज योर हैंड्स दोज हु हैव नॉट रेड एनी टाइम इन क्लास. जिसने कभी नहीं पढ़ा. अभिषेक झूठा. अभिषेक झूठा. हाँ चल मेधा तू पढ़. मेधा अनम्यूट कर. हाँ जी, स्टार्ट बेटा. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. Yes, ma'am. Hunger, hardship, and popular revolt. The 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population मेधा all एक मिनट over रुकना. Europe. मेधा एक मिनट रुको. यू हैव टू स्टॉप आफ्टर एवरी लाइन. ओके. Okay, ma'am. चलो. नाउ फर्स्ट लाइन शी हैज रेड that 1830s. अच्छा, 1830s लिखा है. प्लीज लिसन टू मी. ऑल द फेसेस ऑन द स्क्रीन and these last 4 students, Anish, Hridayjot, Kashish and Krishnur. Last warning, camera on. Last warning. नहीं तो इसके बाद मैं रिमूव कर दूंगी. अपने आप ये वाला टॉपिक घर पे बैठ के पढ़ लेना. यही कह सकती हूँ मैं. हाँ कशिश,
Yes, Kashish, you raised hand. Kashish, you raised hand, beta. You want to say something? Unmute तो करो बेटा. Kashish, unmute yourself. आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो. चलो बाद में ले लेती हूँ डाउट में. हाँ जी, 1830s. अच्छा 1830s, यहाँ एस क्यों लिखा है? रेज योर हैंड्स दोज हू नो द आंसर. राहुल. आस्था. And because it is not that कि hunger, hardship and popular revolt एक ही year में हुए. They continued for many years. Okay. Many years मतलब? In 1830s, like 1831, 32, 33, something like that. कहाँ तक? No, it's not clear. They've not shown us. अरे shown ना, 30s. सिर्फ 30 तक, यानी कि 39 तक. सार्थक. Okay, ma'am. सार्थक. Ma'am, these show that 1830s, all the series of 10 years of 1830s. In these 10 years only. Okay. In these 10 years only, the hunger, hardship and popular revolts taken place. हाँ ठीक है बेटा. Thank you. अच्छा सार्थक, yesterday I was about to ask some question to you and you left the class. सार्थक कल ऐसा हुआ, मैं कुछ पूछने वाली थी, you left the class. आपको शायद याद नहीं होगा. हाँ जी, तो 1830s means 31 to 39. Now start बेटा. अच्छा फर्स्ट लाइन she has read, मेधा ने फर्स्ट लाइन पढ़ी है that 1830s were the year of economic hardship in Europe. ये 10 साल यूरोप में बड़े मुश्किल के थे and especially economic hardship. आपको पता है whenever the difficulty of economic level, it will be difficulty in all the spheres. Economy मतलब whenever we are talking about economy, we are talking about the money. तब हम पैसे की बात करते हैं. जिस घर में पैसे की कमी रहती है ना, वो घर में भी लड़ाइयां होती, खुशी नहीं होती. जिस देश की इकोनॉमी डाउन है, वो देश भी गरीब रहता है, हैप्पी और प्रॉस्पेरस नहीं हो पाता. इन द सेम सेंस यूरोप की इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई. हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन. समझते हो आप? इकोनॉमिक डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूरोप, जब 20 सालों तक इकोनॉमी सही नहीं हो पाई, जब 20 सालों तक लोगों के पास पैसा, काम नहीं था, पूरे यूरोप में रिसोर्सेज नहीं थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी थी एंड पीपल वर अनएबल टू फीड देयर चिल्ड्रन इवन, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन. यही सब कुछ मेधा आज पढ़ने वाली है एंड आई एम गोइंग टू क्लियर टू यू. जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे नाउ अ डेज कोरोना वायरस टाइम, राइट? अभी लॉकडाउन लग गया. एक कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं है, बट 5 बजे तक है. बट इफ द कंडीशन, सेम कंडीशंस विल प्रिवेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, you know what will happen? Complete lockdown for 2-3 months. It may be complete lockdown for 6 months. Just imagine the condition in India कि 6 महीने तक लॉकडाउन लगा रहे, 6 महीने तक हम घर बैठ के खाएं, कुछ काम ना करें. Where the economy level of India go? कहाँ जाएगा इकोनॉमी लेवल? जब हम काम नहीं करेंगे, देश तरक्की नहीं करेगा, पैसा कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक में पैसा नहीं जमा करवा पाएंगे तो हम तो गरीब हो गए ना. तो हम इसको सिर्फ गरीब होना नहीं कहते हैं, नॉट इकोनॉमी लेवल डाउन, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे. आपको पता है, एक होती सैड, सैड हो जाना, एक होता अनहैप्पी, आज मैं खुश नहीं हूं, आज मैं सैड हूं, आज मैं डिप्रेस्ड हूं. 3 आर डिफरेंट वर्ड्स. अनहैप्पी चलेगा, सैड चलेगा, लेकिन जब डिप्रेशन हो जाएगा तो फिर मुझे दवाइयां चाहिए. समझते हो आप? इन द सेम सेंस यूरोप वाज इन इकोनॉमिक डिप्रेशन. इतनी ज्यादा गरीबी हो गई,
अच्छा, गरीबी क्यों होती है, इकोनॉमी लेवल डाउन क्यों जाता है? मेधा के पढ़ने से पहले छोटी छोटी बातें हम आपस में डिस्कस कर लें। एंड आई बिलीव मेरी 10F इतनी अच्छी है, 10 में से 5 पॉइंट तो फटाक से मेरी क्लास सुना देगी मुझे। किसी देश की इकोनॉमी क्यों डाउन जाती है? घर में मम्मी पापा भाई बहन से किसी ने नहीं पूछना, एक एक करके सबसे पूछते हैं। हाँ जी सार्थक, मेधा बाद में तू पढ़ना। हाँ सार्थक, टेल मी 1 पॉइंट। Because of bad harvest and natural calamities. वेरी गुड, नोट करते जाना सारे, मतलब नोट मन में, बुक पे नहीं, कॉपी पे नहीं। अनुज, 1 मोर रीजन फॉर डाउन इकोनॉमी। अभिषेक। मैम वन रीजन कैन बी कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, जिससे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं हो पाते। इसका हम उससे एक भी और रीजन economy- ले सकते हैं अभिषेक, इसका एक और रीजन ले सकते हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, ये भी लिख सकते हैं, इंडस्ट्रीज चल पड़ती हैं। जब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर छोटे लोगों को काम नहीं मिल पाता, फिर हैंडमेड Yes, चीजों की मैम, ये कदर। भी लिख सकते हैं मैम। चलो 3 पॉइंट Yes. हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अनीश, कैन यू टेल मी 1 मोर पॉइंट? मैम यही कि मैम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं रहती उसमें। चलो अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, मेरे 4 पॉइंट्स हो गए। 1 मोर, एक तो और बताओ ना। राहुल, राहुल टेल मी 1 मोर। लैक ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो तो यूरोप में बुरा ही हाल हो गया था। सनत। मैम व्हेन प्रोडक्शन डजंट मीट विद पॉपुलेशन। हाँ, जब पॉपुलेशन, ये तो सबसे पहले ही होना चाहिए था ना सनत, है ना, कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज इट मींस द इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्रीज। यस, एनी अदर पॉइंट किसी के दिमाग में आ रहा है? वरना मेधा ने तो सब पढ़ देने हैं। और जो कॉमन पॉइंट होते हैं ना इकोनॉमिक डाउन के, वही यूरोप में हुए थे, इसलिए 10 साल तक देश बहुत गरीब हो गया। 10 नहीं, ऑलमोस्ट 20 साल तक। चलो मेधा कहाँ गई? मेधा चलो बेटा, स्टार्ट रीडिंग। Now first reason तो she has already read ना, she has read the first half of in 19th century saw enormous increase in population, underline increase in population। अनुज यॉर्निंग कर रहा है, अनुज चाय वाय नहीं पी? हाँ जी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हाँ जी, नेक्स्ट मेधा, कंटिन्यू। In most countries, there were more seekers of jobs than employment. Make it number 2, more seekers of job than employment। जॉब नहीं थी, जॉब लेने वाले ज्यादा थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों के पास काम ही नहीं था। हाँ जी मेधा। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. चलो जी, ये किसी ने भी नहीं बोला, कोई तो बोल देता। माइग्रेशन फ्रॉम द विलेजेस turned, transformed, or you can say shifted, migrated to the urban areas। अब सारे के सारे कनाडा जा रहे हैं, सबके सबको अमेरिका जाना है, तो वैंकूवर का क्या हाल होगा वहां पर? वैंकूवर ही पंजाब बन जाएगा, यू नो। सबके सब लोग को अमृतसर चंडीगढ़ जाना है, सबके सब लोग को जलंधर जाना है, वहां पे सेटल होना है। टांडा दसुआ में तो कोई भी नहीं रह जाएगा, यहाँ तो कोई नहीं रहेगा। But what will be the condition of America, Canada, Chandigarh and Amritsar, Jalandhar, big cities की? Those area will be overcrowded। जब overcrowded हो जाएंगे, उनको रहने को मिलेगा नहीं का, तो then they will create slum areas। This will be the another problem। हाँ जी मेधा। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. अभिषेक ने हैंड रेज करा, मुझे पता अभिषेक ने क्या कहना है। हाँ अभिषेक। मुंबई भी एक एग्जांपल हो सकती है इसकी। हाँ, मुंबई तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर इंडिया में पूछे जाए तो। सभी को वरुण धवन बनना है, सबसे सभी को ज्यादा कैटरीना कैफ स्लम्स बनना उधर है, है। सभी को आलिया भट्ट बनना है, सभी को बॉम्बे जाना है, बनेगा कोई नहीं। स्लम हो जाता है मैम फिर। हाँ, तो वो स्लम एरिया बन जाता है, वहां पे जाके बड़े बड़े बंगलों में, तो शाहरुख खान जैसे बंगलों में तो नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी के पास भी करोड़ों रुपया तो नहीं होता। जाके पहले यू हैव टू डू स्ट्रगल, आपको स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल करते करते 10-15 साल बीत जाते हैं, यंग एज गई तो फिर क्या हीरो बनना, तो फिर क्या हीरोइन बनना, तो फिर क्या होगा, स्लम एरिया में जाएंगे। तो दिस विल बी द अनदर रीजन फॉर इकोनॉमिक डिप्रेशन। हाँ जी मेधा।
अभिषेक तेरा पॉइंट ही क्लियर हो गया ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीपल लाइक मशीन मेड गुड्स, एंड यू नो हैंडमेड गुड नेवर compete with the machine made goods. जो हाथ की बनी चीजें हैं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो ऐसे सुंदर लगती हैं, थोड़ी सी प्यारी लगती हैं, बट दे विल नॉट compete with machine made goods. Can I tell you one example from this book? ये बुक है ना आपकी, ये सिर्फ 100 रुपीज की बुक है या 150 की होगी. जस्ट इमेजिन अगर ये हैंडमेड होती, अगर ये हैंडमेड होती, जस्ट इमेजिन. आज बहुत कंपटीशन है हैंडमेड और मशीन मेड में. अगर ये हैंडमेड होती तो शायद मैं ये आपको 2000 की बुक देती. उसमें भी ड्रॉबैक होती, उसमें भी ड्रॉबैक होती. एक तो सब बच्चों को मिल नहीं पाती, 250 बच्चे हैं 10th के, नहीं मिल पाती. नदर थिंग, नदर रीजन कि किसी को हैंडराइटिंग समझ नहीं आती. नदर थिंग, इसमें जो पिक्चर्स हैं ओरिजिनल वो मैं कहां से लाती. हाँ अभिषेक तू भी बता. मैम अगर लेकिन फिर जो मशीन्स है वो भी हैंडमेड ही है, हम ही ने बनाई है. हाँ है तो हैंडमेड, बनाई तो हमने ही है. अब प्रिंटिंग की बात सुनो, अब एक फोटोस्टेट करवाते हैं ना, ये मैंने आपका अटेंडेंस पेज फोटोस्टेट कराया था स्कूल से. बाहर से करवाऊं तो इट विल कॉस्ट ओनली 2 रुपीज. और ऐसे मेरे को 10 पेज निकलवाने थे पूरे के पूरे सेक्शंस के, ग्रेड 11 12 के भी. You know, it will take only 1 minute, 60 seconds. Just imagine the condition if I will write all the names. Time भी बच गया, पैसा भी बच गया, energy भी बच गई. चलाई बेशक मशीन इंसान नहीं है, but you know Abhishek, the time will come, machine will be robot operated. It will not be man operated. So this was a stiff competition in Europe because of industrialization. अच्छा, where from which country industrialization started? सबसे पहले industrialization कहाँ है? Yes, Rahul. Industrialization started from Rahul. हाँ जी तन्वी. Industrialization started from Britain. Britain. Yes, correct answer beta. Industrialization started from Britain. हाँ जी मेधा. Next beta. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. हाँ ठीक है, उसी को इलेबरेट करा इंडस्ट्रियलाइजेशन को. हाँ सार्थक. मैम पहले का ये हैंड रेज है, वही आंसर देना था. फ्रॉम वेयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड. Okay. हाँ जी मेधा. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of federal dues and obligations. Chalo, this was another reason because of autocracy, peasants and other people, lower class people and poor people, they were suffering a lot. Yes, Medha. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. हाँ जी, दूसरा क्या हो गया? दूसरा नहीं, आई थिंक 7th 8th होगा ये पॉइंट. वाइड स्प्रेड पॉपुरिज्म. पॉपुरिज्म मीन्स पॉवर्टी हो गई बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट. राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फूड प्राइस बढ़ गए और उधर से फसल भी खराब हो गई. So these kind of years are known as a hardship, hunger and popular revolt in Europe. अभी तो आपने हंगर पढ़ा, हार्डशिप पढ़ा, अभी कोई रिवोल्ट हुआ नहीं है. रिवोल्ट अब होगा. When the people will fed up with the government, with the authority, with the king, then they are angry. ऐसा ही होता है ना. हमेशा ऐसा ही होता है ना. घर में कौन होता है ऑनर? फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट्स. और आप जब गुस्सा होते हो तो सारा गुस्सा उन पे उतर जाता है ना. फिर ऐसा ही होता है. इन द सेम सेंस इन आवर एरिया, इफ वी आर नॉट हैप्पी विद द अथॉरिटी, वो मिनिस्टर्स पे हम बस उन पे सारा ब्लेम करते हैं. इफ आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, वी स्टार्टेड पुटिंग ब्लेम ऑन द प्राइम मिनिस्टर. है नहीं मोदी जी से कुछ होना, है नहीं प्राइम मिनिस्टर से कुछ होना, इतना वायरस फैला, कुछ नहीं ये कर पा रहे हैं, किसानों के लिए कैसे बिल पास कर दिए है नहीं इनसे कुछ होना. देन वी स्टार्ट पुटिंग ब्लेम ऑन द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट एज वेल. In the same sense, here in Europe, people are suffering a lot because Meta had 10. I think she has read 10 points. You have underlined कि इतने सारे reasons थे कि अब now people are not happy with the government. They are hungry.
difficult time, hardship time. Now they will revolt. हाँ जी सचलीन, start reading बेटा. The year 1848 was one such year. चलो Food shortage and widespread सचलीन एक मिनट बेटा, please start writing here question. Why the year 1848 was important? Why the year 1848 was important? Now Sachaleen has read that the year 1848 was one such year. ऐसा क्या हुआ था उस साल? हाँ जी सचलीन. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. चलो जी, फूड शॉर्टेज होगी, लोगों को खाने को नहीं मिला. वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, काम उनके पास नहीं था, खाने को उनके पास नहीं था, लोग तंग आ गए और पेरिस का तो बुरा ही हाल था और पीपल सड़कों पर आ गए. They were totally against. Yes. Barricades were eradicated and Louis Philippe was forced to flee. हाँ जी, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और राजा जो था पेरिस का, लुइस फिलिप, वो भाग गया. फ्ली मतलब रैन अवे. प्लीज राइट डाउन इट्स मीनिंग. फ्ली, FLEE, रैन अवे. हाँ जी सचली. A National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and granted the right to work. चलो, अब नेशनल असेंबली बन गई और उन्होंने कहा दे वांट राइट टू वर्क एंड सफरेज टू ऑल द एडल्ट्स अबव 21 years, only males. थी यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन. नाउ दे डिमांड सफरेज फॉर 21 years, above 21 years. National workshops to provide the unemployment were set up. Yes, and national workshop were provide unemployment were set up. अब क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनो, इसके बाद नहीं पढ़ा रही हूं मैं, ध्यान से सुनना. नाउ सचलीन हैज रेड 2 lines की नेशनल असेंबली बनी एंड दे वर डिमांडिंग 2 things. बेटा अंडरलाइन करो योर 1 mark आंसर. व्हाट नेशनल असेंबली डिमांडेड? राइट टू वर्क and suffrage for adults 21 years of age. These 2 things. क्योंकि सबसे पहले तो काम चाहिए ना बेटा. काम अगर है तो पैसा आ जाएगा, पैसा अगर आ गया तो we can feed our children. तो घर में हैप्पीनेस आ जाएगी. And if we are unable to do work, then what will happen? Then what will happen? If we are unable to do work, then what will happen? Every time there will be disorder, chaos and confusion. Now see, if I'm not getting work, आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, raise your hands those who know the answer. This is not from your syllabus, this is general question. आप ये बता पाओगे, then your question will be cleared. Now see, if I am unable to get work, if I am unable to get job, मैं MA B.Ed हूँ, ठीक है? I'm having 15 years of experience. ठीक है? But still I'm not getting job. Then who is responsible for that? मैं तो नहीं हूं ना मेरे parents हैं. Okay? मेरे parents मुझ पे पैसा लगा सकते थे. They spent a lot of money. लाखों रुपया लग गया मेरे को MA B.Ed qualification complete करने में. Right? मेरे हाथ में था सिर्फ पढ़ना. वो मैंने पढ़ लिया. Still I'm not getting job. Then who is responsible? Tanvi? The government is responsible. Yes, the government is responsible. Rahul? The government is responsible. The government is responsible. Sarthak? The government is responsible because government don't provide a variety of jobs. ठीक है, तो मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरे हाथ में तो पढ़ना था ना, वो मैं पढ़ गई हूँ. अब आप मेडिकल करते हो, CA बनते हो, डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर बनने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर सरकार जिम्मेवार है ना अभिषेक? मैंने तो ये पूछना था, मतलब सरकार कैसे हो सकती है जिम्मेदार? अगर मान लो कि प्राइवेट में हम लोग ट्राई करते हैं और फिर उसमें भी सरकार होगी. हाँ बिल्कुल, ऑनर वही है ना हमारे देश के. अब आपको मान लो आज खाना नहीं मिले, ठीक है, मम्मा से आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, मम्मा ने ब्रेकफास्ट नहीं दिया, मम्मा ने लंच भी नहीं दिया, हाँ, कोई फ्रूट सैलेड भी नहीं मिला, इवनिंग टाइम हुआ दूध भी नहीं मिला, शाम तक क्या बुरी हालत हो जाएगी.
शाम को पापा Yes, आएंगे ma'am. तो आप कंप्लेन करोगे और पापा बोलेंगे अभिषेक क्या हुआ, आज बड़ा वीक लग रहा है, चेहरा बड़ा मुरझाया, क्या हो गया, है ना? Yes, ma'am. बोलोगे मैं पापा सुबह से भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला खाने को, मम्मा ने कुछ नहीं दिया। तो हियर हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपको अगर खाना नहीं मिला तो योर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। इन द सेम सेंस आज अगर मुझे जॉब नहीं मिलती है तो हमारे देश का ओनर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है। Prime Minister, गवर्नमेंट government. Yes, रिस्पॉन्सिबल है, ma'am. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता है अगर हमें काम नहीं मिलता तो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अब आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में चले, देखिए इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी है आपकी और किस किस की अच्छी है ये देखते हैं। नाउ सी, अब इकोनॉमिक्स में आप एक चीज पढ़ते हो, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क तो पढ़ते हो आप, है ना, सबको काम मिलने का हक है। One scheme has been launched by the government of India to give minimum days of work. कम से कम इतने दिन सबको काम मिलेगा। देखना है मुझे इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी है किसकी। Only 5 hands. हाँ शबनम। Ma'am, Narega. Yes, नरेगा। It's मनरेगा आई थिंक, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्लान, कुछ ऐसा ही है ना। सार्थक से पूछते हैं, सार्थक फुल फॉर्म क्या है इसकी? 9th में पढ़ा था। ये मनरेगा, महात्मा गांधी ऐसा कुछ है ना। मैं भी यही सोच रही थी सार्थक, यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाइल राइटिंग, मुझे भी लग रहा था लिखूंगी तो समझ आ जाएगी। मैम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हाँ ये था। अच्छा इसके अकॉर्डिंग क्या होता है सार्थक, पता है तुझे? सार्थक तू मत बता, मैम, सार्थक तू मत बता, मैं ना अभी आस्था से पूछती हूँ। आस्था धवन, रोल नंबर 3, यू नो द आंसर? ओके, अनम्यूट करती हूँ फिर मैं। Ma'am, people are given some days of work. सम to मतलब earn. कितने? सम मतलब कितने? Some months of the year. बता ना, सम मंथ, सम कितने? 50 to 60 days. नो, उतने दिन काम करके कहाँ खाना मिल पाएगा। नो, इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है आपकी। हाँ जी कशिश, देखते हैं जरा और। Ma'am, 100 days. यस, 100 डेज वर्क मिलता है मनरेगा के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि 100 दिन काम सबको मिलेगा। अगर 100 दिन काम नहीं मिलता तो फिर मैं पैसे दूंगा, सरकार कहती है फिर मैं पैसे दे दूंगा। एंड यू नो दिस टर्म इज कॉल्ड अलायंस। दिस टर्म इज कॉल्ड अलायंस। फिर थोड़े बहुत पैसे सरकार देती है कि घर का खर्चा चल जाए जब तक इसको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि जॉब देना तो मेरी जिम्मेवारी है ना। हाँ अभिषेक। मैम अगर 15 डेज के अंदर अंदर वर्क ना मिले मैम, फिर अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है। फिर अलायंस मिलना शुरू हो जाता है। आपके रीटा मैम को भी मिला थोड़ा सा, पता है? आई एम टेलिंग यू रियलिटी। यस, मुझे भी मिला। पता कब? हमें किसका एग्जांपल हो सकता है? NHAI, जो हम लोग हाईवे पे टोल देते हैं, टोल टैक्स। हाँ वो भी हम कह सकते हैं। अब देखो अनीश ने, राहुल ने सरप्राइजिंग इमोजी मुझे भेजी है। यस, मुझे भी अलायंस मिला हुआ। व्हेन इन द बिगिनिंग ना आई हैव क्लियर्ड माय ग्रेजुएशन, जालंधर में थी मैं, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बड़ा है लगा ग्रेजुएट हो गए अब हम, है ना, ग्रेजुएट हो गए, पता नहीं कैसी पावर आ गई, अब तो जॉब्स की लाइन लग जाएंगी, है ना। सारे स्कूल्स वाले बोलेंगे रीटा मैम आओ टीचर बनो, रीटा मैम हमारे यहाँ आओ, ऐसे ऐसे वाला था। हाय रब्बा, लेकिन 2 3 4 6 महीने बाद तो किसी ने कोई जॉब नहीं ऑफर करी, बिकॉज आई वाज फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाने का, कुछ भी नहीं था। तो फिर अनएम्प्लॉयड, आई वाज टोटली अनएम्प्लॉयड, सिर्फ खाली बीए किया था, नॉट एमए नॉट बीएड। देन देयर इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन जालंधर। फिर सम पीपल टोल्ड मी टू रजिस्टर योर नेम ओवर देयर, वहां पर अपना नाम लिखवाओ, जब भी जॉब निकलेगी तो दे विल ऑफर यू। दिस इज द मैटर ऑफ 20 years बैक, काफी पुरानी बात बता रही हूँ मैं। अच्छा वहां हम गए, लंबी सी लाइन में लगे, क्या किया वहां? बेरोजगारों में अपना नाम लिखवाया। हाँ, गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, ठीक है। अच्छा
तो उसको क्या करते हैं, फिर वो थोड़े दिनों बाद थोड़े से पैसे भेजते हैं। तो लेकिन वो आफ्टर एवरी ईयर ना आपको वहां पर आपका नाम रिन्यू करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं कभी नहीं गई, वन टाइम ओनली आई वेंट देयर। फिर एक छोटे से स्कूल में जॉब मिल गई, फिर एमए किया, बीएड किया, और फिर एक्सपीरियंस हो गया, और फिर आपके पास आ गए कैम्ब्रिज में, जो हमारा सपना था कैम्ब्रिज में जॉब करने का, है ना। तो इस तरह गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस सम मनी, नहीं तो फिर एज यू टोल्ड मी कि 100 डेज ऑफ वर्क सबको मिलेगा, 100 दिन काम सबको मिल। काम तो जरूरी है ना बेटा, पापा काम पे जाते हैं, मम्मा काम पे जाते हैं, पापा तो जाते ही है ना, काम तो जरूरी है। इन द सेम सेंस नेशनल असेंबली डिमांडेड ओवर देयर जॉब्स एंड वर्क। काम मिलेगा तो यूरोप के पीपल हैप्पी होंगे, अदरवाइज 1830 से लेकर 1850s 20-25 साल तक यही कुछ चलता रहेगा, है ना। So they demanded suffrage for 21 years males only, about 21 years males only, and right to work. Now show me thumbs up if this paragraph clear to you. फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू रीड ना, अर्लियर इन 1845, यहाँ एक क्वेश्चन लिखो, राइट वन क्वेश्चन बुक पे, नॉट इन कॉपी। कल काफी लिखा आप लोगों ने ना, 2 क्वेश्चन कंप्लीट करे। एक्सप्लेन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ सिलेशियन वीवर्स। एक्सप्लेन द पैथेटिक, या पेनफुल लिख लो, उर्विश लिख लो। एक्सप्लेन द पेनफुल कंडीशन ऑफ सिलेशियन वीवर्स। सिलेशिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री, एस कैपिटल। आपको दिख जाएंगे स्पेलिंग आगे जाके, थोड़ा सा देखो, फर्स्ट लाइन में है। अनुज कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? एक्सप्लेन द पेनफुल कंडीशन ऑफ द वीवर्स ऑफ सिलेशिया। हाँ शबनम। Ma'am, what is the answer of first question? Why the year 1848? सेम पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, थोड़े से ऊपर से वो Full? पॉइंट ऐड कर लेना जो मेधा ने पढ़े, बस। Today we are Okay, not ma'am. going to write any question. We have done only 2 questions yesterday and 1 question we will do tomorrow. ये सिलेशिया वीवर वाला समझा भी दूंगी, करवा भी दूंगी, ठीक है। अच्छा, those students who were not in class yesterday, please complete your both of the questions. Right. चलो, shall I wind up the class? हाँ अनीश, yes अनीश बेटा, डाउट है? मैम वो दोनों क्वेश्चन मैम बुक में मार्क करवाए हैं? हाँ जी, बुक में मार्क करवाए थे बेटा, मैंने डिक्टेट नहीं करवाए थे, मैंने बुक में मार्क करवाए थे। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय, हैव अ वंडरफुल डे माय डियर, स्टे हेल्दी बेटा, थैंक यू।